Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are discuss about unit of concentration. Concentration of a solution means the amount of the solute present in a given quantity of the solution or the solvent. Firstly हम जानेंगे solute और solvent क्या होते हैं. For example हमने गिलास लिया, गिलास में हमने लिया पानी और पानी में हमने ऐड कर दिया शुगर या सॉल्ट कुछ भी. तो जो पानी होगा वो solvent होगा और जो हमने ऐड किया वो होगा solute. Thus, while expressing the concentration of a solution, only the relative amounts of the component are considered. The concentration of a binary solution can be expressed in a number of ways. First है strength. Amount of the solute in grams present in 1 liter of the solution. Mathematically, strength equal to mass of solute in gram अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. जो हमने सोल्यूट लिया होगा उसका मास ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में. सो यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आर ग्राम पर लीटर बिकॉज मास की यूनिट होती है ग्राम और वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर. ये अपॉन में है तो ऊपर जाके ये इन्वर्स में हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, if 4 gram of a solute are dissolved in 250 milliliter of the solution, then find the strength. So strength equal to mass of solute upon volume of solution. इसमें वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में दिया है पर हमने इसे कन्वर्ट करना है लीटर में. सो वी कैन राइट 4 ग्राम अपॉन 250 अपॉन 1000. 0 से 0 कैंसिल. 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज़. 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20. तो ये आया 4 अपॉन 1/4. जब हम 1/4 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा 4 इंटू 4 दैट इज़ 16 ग्राम पर लीटर. नेक्स्ट है मास परसेंट. द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कॉम्पोनेंट. कॉम्पोनेंट जो है वो सोल्यूट या सॉल्वेंट हो सकते हैं पर 100 पार्ट बाय मास ऑफ द सोल्यूशन. If A and B are the two components of a binary solution, then mass percent of A WA upon WA plus WB into 100 and similar mass percent of B. Next है mass fraction. The ratio of mass of one component to the total mass of all the components present in the solution. For example, for a binary solution containing two components A and B, so mass fraction of A ratio है mass of one component. This is mass of one component to the total mass of all the component present in the solution. So WA plus WB. Next है mole fraction. The ratio of the number of moles of one component to the total number of moles of all the components present in the solution. For example, for a binary solution made up of component A and B. So mole fraction of A represent करेंगे XA से क्योंकि mole fraction को हम डिनोट करते हैं X से इक्वल टू moles of one component A के लिए कर रहे हैं तो NA अपॉन total number of moles of all the component Na plus Nb. Similar mole fraction of B that is Xb equal to Nb upon Na plus Nb. Sum of mole fraction जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनका सम आएगा 1 के इक्वल क्योंकि इसका एलसीएम आ गया सेम है तो Na प्लस Nb और इनकी एडिशन करके Na प्लस Nb दोनों कट हो जाएंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा. नेक्स्ट है पार्ट पर मिलियन ppm. द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ द सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल, इफ A and B are the two components of the solution, then part per million of A equal to mass of A upon mass of solution into 10⁻⁶. नेक्स्ट है मोलैरिटी जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से.
The number of gram moles of the solute dissolved per liter of the solution. Mathematically, molarity equal to gram moles of solute upon volume of solution in liter, or we can write mass of solute in gram upon molar mass upon volume of solution in liter. Units of molarity is ग्राम मोल पर लीटर या फिर मोल्स पर लीटर. फॉर एग्जाम्पल, द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 250 ml of the solution can be calculated. So, molarity equal to mass of solute in gram upon molar mass. सोल्यूट का वेट दिया है 4.9 ग्राम. सोल्यूट का मास दिया है 4.9 ग्राम. अब हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ H2SO4. सो हाइड्रोजन का मास होता है 1. 2 मोल हैं हाइड्रोजन के, तो 2 × 1 प्लस सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 और इसका मोलर मास होता है 32, एटॉमिक मास, और प्लस 4 एटम जो है वो ऑक्सीजन के दिए हैं, तो 4 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 98. तो आया 98 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ये डिसॉल्व किया है 250 ml में, तो 250 ml अपॉन, हमें लीटर में चाहिए तो अपॉन 1000. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.2 मोल पर लीटर. नेक्स्ट है मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन ऑन मिक्सिंग टू सोल्यूशन. व्हेन वॉल्यूम V1 of a solution of molarity M1 is mixed with volume V2 of another solution of molarity M2, then the molarity M3 of the resulting solution is given by the equation M1V1 plus M2V2 equal to M3V1 plus V2. नेक्स्ट है मोलैलिटी, जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से. द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. मैथमेटिकली, मोलैलिटी इक्वल टू ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और वी कैन राइट मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन 1000. यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी इज ग्राम मोल्स per kilogram or moles per kilogram. For example, the molality of a solution containing 5.3 gram of anhydrous Na2CO3 in 200 gram of water can be calculated as. इसमें मास ऑफ सोल्यूट दिया है 5.3 ग्राम. अब हम फाइंड करेंगे मोलर मास ऑफ Na2CO3. जैसे मोलैरिटी में सल्फ्यूरिक एसिड का किया था वैसे ही इसका करेंगे. इधर सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16. तो आएगा 106 ग्राम पर मोल अपॉन 200 ग्राम ऑफ वाटर. तो 200 ग्राम अपॉन 1000, क्योंकि हमें इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25 मोल पर किलोग्राम. नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी. द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. मैथमेटिकली, नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और वी कैन राइट मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन volume of solution in ml upon 1000. So units of normality is gram equivalent per liter और equivalent per liter. Equivalent mass जो होता है वो different होता है from molecular mass और molar mass. Equivalent masses of different substances. अगर हमने element का equivalent mass calculate करना है तो ये equal होगा atomic mass of element upon valency of element. अगर हमने इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन कैलकुलेट करना है तो ये इक्वल होगा फॉर्मूला मास ऑफ आयन
अपॉन चार्ज ऑन आयन। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, जिसमें कि हमने मास परसेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। A solution has been prepared by dissolving 5 gram of urea in 95 gram of water. Find the mass percent of urea in the solution. हमने पढ़ा कि मास परसेंट जो है वो इक्वल होता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। गिवन है इधर मास ऑफ सल्यूट 5 ग्राम और क्या गिवन है मास ऑफ वाटर। अब हम ये वैल्यू जो है वो इधर पुट कर देंगे, तो मास परसेंट ऑफ यूरिया इक्वल होगा मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ वाटर, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन हमें सॉल्यूशन का मास चाहिए, तो सॉल्यूशन में जो है वो यूरिया भी ऐड होगा और वाटर, दोनों का मास को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आएगा इंटू 100, 5 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो ये बचा 5%। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो मास ऑफ सोल्यूट 2.5 ग्राम है, मोलर मास निकालना है इथेनोइक एसिड का, तो मोलर मास कैलकुलेट करके आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। नाउ सॉल्वेंट है इधर बेंजीन जो कि है 75 ग्राम, हमें इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 75 ग्राम अपॉन 1000, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.075 किलोग्राम। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला। जब हम इसमें फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.556 मोल पर किलोग्राम।